Good morning, students. Today I will teach you geography. You have already read history and civics. In history, nationalism in Europe, and in civics, you have already read power sharing. Today I am going to teach you geography. In geography, I will teach you resources. Okay, resources, that is the first chapter in geography. What is resource? How many types of resources? That means classification of resources, and that is used by us rapidly, and the impact of this use of the rapidly use. तो लेट्स स्टार्ट कि व्हाट इज रिसोर्स. सबसे पहले ये जानेंगे कि रिसोर्स क्या है. रिसोर्स के कितने तरह के रिसोर्सेस हैं, और इसे जो बेतहाशा मानव जो इस्तेमाल कर रहा है बेधड़ल्ले, तो इसका क्या प्रभाव पड़ता है इन्वायरमेंट पे, और उसका नतीजा हम कैसे भुगतते हैं, है ना. सो एंड सो, और स्पेशली we will focus the land as resource. Okay, land as resource, जिसमें 95% हमारी जो नीड फुलफिलमेंट होती है वो थ्रू द दैट रिसोर्स, दैट इज लैंड. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये जानेंगे कि व्हाट इज रिसोर्स. रिसोर्स क्या है. Everything in our environment that can be used to satisfy our needs, which is technologically accessible, economically feasible, and culturally acceptable, can be termed as resource. And human beings themselves are essential components of resource. Human beings भी resource है ना. तो जितने भी धरती पे या environment में वो है, everything that is found in environment or that satisfy our needs, that can be termed as resource, and we the human beings also are important components of the resource. तो क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्स की रिसोर्सेस के कितने टाइप्स हैं, कौन कौन से रिसोर्सेस हैं. तो दो रिसोर्सेस हो गए, एक तो नेचुरल और दूसरा ह्यूमन. नेचुरल रिसोर्सेस में रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल. रिन्यूएबल रिसोर्सेस कैन बी क्लासिफाइड कंटीजेनस एंड बायोलॉजिकल. ओके, तो कंटिन्यूअस का एग्जांपल है विंड और वाटर. बायोलॉजिकल, दैट आल्सो सब क्लासिफाइड इनटू नेचुरल एंड वाइल्ड लाइफ. non-renewable, recyclable and non-recyclable. recyclable जैसे मेटल हुआ, नॉन रिसाइक्लेबल फॉसिल है ना. फॉसिल फ्यूल्स जो है वो नॉन रिसाइक्लेबल है. तो ये नेचुरल रिसोर्सेस कैन बी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू इट्स ओरिजिन, अवेलेबिलिटी इन नेचर, इट्स पर्पस ऑफ द यूज, स्टेट एंड द डेवलपमेंट. किस आधार पे हम रिसोर्सेज को क्लासिफाई कर सकते हैं. द फर्स्ट जो बेस है, जो आधार है, ऑन दैट बेसिस द रिसोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड, दैट इज ओरिजिन, उत्पत्ति के आधार पे जो संसाधन है, जो रिसोर्स है, दैट कैन बी क्लासिफाइड इनटू बायोटिक एंड अबायोटिक. बायोटिक क्या है? दिस रिसोर्सेज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम बायोस्फीयर, ह्यूमन बींग्स, flora and fauna. Coal and petroleum may be considered as biotic resource, whereas abiotic में these resources are composed of non-living things. Okay, abiotic non-living things. दूसरा बेस है क्लासिफिकेशन का, that is on the basis of exhaustibility. exhaustibility क्या होता है? समाप्त हो जाने वाला ना, वो ये नहीं फॉर एवर रहेगा. उसमें renewable resources which can be renewed or reproduced. ओके, जैसे सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, फॉरेस्ट, वाटर, वाइल्ड लाइफ ना. उसको फिर फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं.
flow or continuous resource are biological resources. And the second, that is the non-renewable resources. The renewable and non-renewable. Non-renewable, these resources which were formed through long geological time period and cannot be renewed are known as non-renewable resources. For example, इसमें minerals, metals, fossil fuels, like fossil fuels में coal, etc. These resources may further be divided into recyclable and non-recyclable. Metal can be recycled, okay, but fossil fuels cannot be recycled. Metal can be recycled, but fossil fuels cannot be recycled. On the basis of, अब अगला जो हम देखेंगे क्लासिफिकेशन वो है ओनरशिप के आधार पे, मालिकाना ना। वो 4 तरह के होते हैं, एक इंडिविजुअल रिसोर्सेस, कम्युनिटी रिसोर्सेस, नेशनल रिसोर्सेस एंड इंटरनेशनल रिसोर्सेस. So on the basis of ownership, resources can be classified into 4 groups, okay, in which the first is individual resource. ये क्या होता है? Which are owned privately by individual, जैसे plantation, pasture land, farm land, ना आदि. Second, community owned resources. ये क्या होता है? The resources which are accessible to all the members of the community are known as community resources. यानी वहां इंडिविजुअल ओन्ड है, यहाँ कम्युनिटी ओन्ड है ना, माइंड दैट. तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन इंडिविजुअल रिसोर्स एंड द कम्युनिटी रिसोर्स. सच एज कम्युनिटी रिसोर्स का एग्जांपल देखो, सच एज ग्रेजिंग ग्राउंड्स, बुरियल ग्राउंड्स, पॉन्ड्स इन विलेज एंड पब्लिक पार्क्स. पार्क तो किसी एक इंडिविजुअल का होता नहीं है ना, वो पूरे कम्युनिटी का होता है ना. तो दैट रिसोर्स विच इज ओन्ड बाय द कम्युनिटी. द थर्ड रिसोर्स दैट इज द नेशनल रिसोर्स. ये क्या होता है? दिस रिसोर्सेस विच आर अंडर द कंट्रोल ऑफ द नेशन. ओके, ये पूरे नेशन के कंट्रोल में रहता है. दैट इज ओन्ड बाय द नेशन और द एज होल कंट्री. जैसे इसके एग्जाम्पल में क्या है? कनाल, कोल माइंस, द रेलवे को ले लो ना. तो दैट इज नॉट ओन्ड बाय आइदर एन इंडिविजुअल और द कम्युनिटी. दैट इज ओन्ड बाय एज अ होल नेशन. ओके, उस पर सबका अधिकार है. ठीक है, रेलवे. एंड द फोर्थ दैट इज द इंटरनेशनल रिसोर्स. वो क्या होता है? दैट इज this resource which are owned and regulated by international institution ना, उस पूरे इंटरनेशंस का होता है. उसका एग्जांपल क्या है? So open sea used for peaceful navigation, open sky for flight ना, for flight movement. तो these are the 4 types of resources on the basis of ownership. And the next, the classification of resource that is based on the basis of status of development. Okay, इसमें क्या होता है? पोटेंशियल रिसोर्स, डेवलप्ड रिसोर्स, स्टॉक एंड द रिजर्व्स. तो दीज आर द सो मेनी बेसिस ऑन विच द रिसोर्सेस कैन बी क्लासिफाइड है ना. दैट इज गिवन इन ईच ऑफ द बुक ना. एनी बुक यू हैव, यू कैन इजिली रीड दैट. ओके, अब नेक्स्ट जो चीज हम बताने जा रहे हैं, ओके, दैट इज द डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेस. ये क्या होता है? इट वॉज बिलीव दैट रिसोर्सेस आर फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर. ऐसा विश्वास किया जाता है कि फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर क्या? रिसोर्सेस. ओके, बट ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस हैज लेड टू मेनी प्रॉब्लम्स ना. ओवर यूज ऑफ दैट रिसोर्स दैट क्रिएट अ प्रॉब्लम, that create a problem to us. क्या? Resources depletion for satisfying the greed of few individuals. Okay. Second, unequal resources distribution which created accumulation of resources in few hands. Okay. Unequal resource distribution, उस रिसोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन एक जैसा नहीं है ना, अनइक्वल है. और क्या हुआ? एक्मुलेशन ऑफ रिसोर्स, एक्मुलेट हो गया इन फ्यू हैंड्स. कुछ आदमी जो हैं उस पे कंट्रोल किए हुए हैं, कुछ पे कुछ का नहीं है.
few hands due to which society is divided into rich and पुअर, उसका नतीजा ये होता है आप लैकिंग फील करते हैं, जिसके हैव्स एंड हैव्स नॉट लाइक दैट. ओके. ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस, और उसके चलते क्या होता है, ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस है, ग्लोबल वार्मिंग है, ओजोन लेयर डिप्लीशन है, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन है. तो दीज सच एंड सच प्रॉब्लम क्रिएटेड ड्यू टू द ओवर यूज ऑफ दैट resource which is considered as the free gift of nature. तो आज हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं. ये नहीं कि बेतहाशा आप विकास करते जा रहे हैं ना, कि ये जो भी संसाधन है प्रकृति जो हमें प्रदान किया उसका हम शोषण करते जाएं बेतहाशा बेधड़ल्ले. नो. तो आज हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं. ये क्या होता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द इन्वायरमेंट. ओके, विदाउट डैमेजिंग द इन्वायरमेंट ना, इन्वायरमेंट को बिना डैमेज किए हुए, पर्यावरण को बिना क्षति पहुंचाए हुए अगर हम विकास करते हैं, दैट विकास इज कंसिडर्ड एज द सस्टेनेबल डेवलपमेंट. ओके. And development in the present should not compromise with the needs of the future generation. ये नहीं कि सब हम अपने फ्यूचर के लिए कुछ नहीं सोचे ना. जो भी फ्यूचर जनरेशन है उस पे उसका वो बाद में क्या खाएगा, क्या पहनेगा, कहाँ रहेगा, ये बात है. तो आज डेवलपमेंट नहीं बट सस्टेनेबल डेवलपमेंट. तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट में स्ट्राइकिंग फीचर क्या है, विदाउट डैमेजिंग द इन्वायरमेंट. ओके. तब अगर आप विकास करते हो, दैट डेवलपमेंट कैन बी कंसिडर्ड एज सस्टेनेबल डेवलपमेंट. ओके. एंड यू हैव टू बी थिंक also about your the future generation. ये नहीं कि रैपिडली ओनली इतना सेल्फिश नहीं होना है आपको, है ना. रिसोर्स प्लानिंग इज एसेंशियल फॉर सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस ऑफ. ओके. तो आज रिसोर्स प्लानिंग की बात होती है. सस्टेनेबल डेवलपमेंट में एक प्लानिंग की बात होती है. अब रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया ये क्या है, तो हमारे देश में रिसोर्स प्लानिंग की बात करेंगे. देखिए, रिसोर्स प्लानिंग इन्वॉल्व्स आइडेंटिफिकेशन एंड क्वांटिफिकेशन ऑफ द अवेलेबल रिसोर्स एंड प्लानिंग ऑफ रिसोर्स डेवलपमेंट दैट वुड बी कंसिस्टेंट विच ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान. रिसोर्सेस आर अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड. अभी हमने बताया कि जो रिसोर्सेस है दैट इज अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, है ना. किसी के पास बहुत ज्यादा है, किसी के पास कम है, किसी के पास नहीं है, 9 के बराबर है, बिल्कुल ही नहीं है. तो दैट क्रिएट्स अ प्रॉब्लम इन सोसाइटी. माइंड दैट. तो स्टेट्स लाइक झारखंड कैसे अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है ये रिसोर्सेस. ओके. व्हाट आर रिसोर्सेस, that is clear, no problem. What are resources and what are the classification of resources. क्या क्या संसाधन हो सकते हैं, हम अपने आप में संसाधन, ह्यूमन बींग्स also a component of the resource. Okay. तो कैसे अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है इंडिया में, है ना, और उसके चलते क्या प्रॉब्लम क्रिएट होता है. तो उस हाउ टू टैकल दैट प्रॉब्लम, फॉर दैट a planning is needed. That is considered as more or less the resource planning. States like Jharkhand, Chhattisgarh and Madhya Pradesh are rich in coal and minerals but lack technological and institutional support. Okay. कि झारखंड में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में क्या है, मिनरल्स हैं. दे आर द स्टेट्स विच आर रिच इन मिनरल्स but lacking in technological and institutional support. Also suffer from the land degradation. They are economically backward. That's why ना वहाँ land degradation हो रहा है, वहाँ mines है ना, minerals है, they are rich. Minerals point of view से that state are rich, है ना. झारखंड हुआ, छत्तीसगढ़ हुआ, मध्य प्रदेश हुआ, but technologically वो क्या है, backward है. टेक्नोलॉजिकली बैकवर्ड है. दे आर सब फॉर लैंड डिग्रेडेशन. दे आर इकोनॉमिकली ड्यू टू दैट
दे आर इकोनॉमिकली बैकवर्ड। दूसरा एग्जांपल देख लीजिए, अरुणाचल प्रदेश हैज अबंडेंट वाटर रिसोर्सेज। जैसे झारखंड, मध्य प्रदेश और उड़ीसा में क्या है, मिनरल्स का बहुत आयत है, बट टेक्नोलॉजिकली बैकवर्ड लैंड, एंड ड्यू टू द लैंड डिग्रेडेशन, माइंस के चलते वहां क्या हो रहा है, दैट स्टेट कंसिडर्ड एज बैकवर्ड स्टेट। तो लाइक दैट अरुणाचल प्रदेश हैज अबंडेंट वाटर रिसोर्सेज ना, वहां भी उसका जल संसाधन बहुत है ना, अबंडेंट, एनफ, बट लैक्स इन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर में वो स्टेट क्या है, पीछे है। राजस्थान को देखते हैं, राजस्थान इज वेल इंडोर्ड विथ विंड एंड सोलर एनर्जी। विंड एंड सोलर एनर्जी में राजस्थान रिच है, बट लैक वाटर रिसोर्सेस, वहां वाटर रिसोर्सेस की कमी है। यू नो देयर इज अ डेजर्ट, मरुभूमि। सम स्टेट्स लाइक पंजाब, take the another example. What I am explaining, I am explaining the unequal distribution of resource in India. कि हम स्टेट वाइज देख रहे हैं कि किस किस स्टेट में कौन सा रिसोर्स है, वहाँ रिसोर्स में वो स्टेट रिच है, बट इन द अनदर एस्पेक्ट दैट स्टेट इज बैकवर्ड ना, पीछे है, पीछे चल रहा है। अब देखिए पंजाब को ले लीजिए, सम स्टेट्स लाइक पंजाब, हरियाणा हैव अ पुअर रिसोर्स बेस ना, वहां रिसोर्स की कमी है। कहाँ पे, पंजाब हो, हरियाणा हो, बट दे आर इकोनॉमिकली डेवलप्ड। पंजाब एंड हरियाणा इकोनॉमिकली developed due to the green revolution, very rich in farming or the cropping. Okay, the cold desert of Ladakh, लद्दाख को देखिए, नेचुरल रिसोर्सेस although it has a rich, ना नेचुरल रिसोर्सेस वहां है, बट that is the cultural heritage. So the various limitation and differences in resource distribution demands the balanced resource planning. तो कैसे balance हो, okay, for that a resource planning is needed. क्या होता है, India followed the policy of resource planning from the very first 5-year plan rightly after the independence. तो इस अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन को खत्म करने के लिए भारत आजाद होते ही अपने फर्स्ट ईयर 5-year प्लान में इसको ऑप्ट किया, क्या, रिसोर्स प्लानिंग। द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेस अलोन कैन नॉट बिगिन द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट, नेसेसरी टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशनल सेटअप आर आल्सो रिक्वायर्ड। ओके, टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशनल सेटअप आर आल्सो रिक्वायर्ड, नॉट ओनली द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्स। केवल रिसोर्स ही काफी नहीं है, बल्कि वहां टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशनल सेटअप भी करना जरूरी है। ये अब बात जो करेंगे वो नेक्स्ट होगा कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेस। हाउ टू कंजर्व, व्हाई conservation of resource is needed. Okay, irrational consumption and overutilization of resources may lead to socio-economic and environmental problem. Okay, irrational, and human beings are rational, but हमारा जो activities है वो क्या है, irrational. The irrational consumption and overutilization of resources may lead to socio-economic environmental problem. गांधी जी voiced, अब गांधी जी ने क्या कहा, गांधी जी voiced he is concerned about resource conservation which he said. Gandhi said here is enough for everybody's need and not for anybody's greed. लालच का कोई अंत नहीं है। गांधी जी ने कहा ना कि लालच का कोई अंत नहीं है। He blamed greedy and selfish individuals and the exploitative nature of modern technology as the root cause of resource depletion at the global level. और यही कारण है, इस ग्रिड का ही कारण है कि पूरे वैश्विक स्तर पे रिसोर्स क्या हो रहा है, डिप्लीट कर रहा है। He was against mass production, ना, वो मास प्रोडक्शन के अगेंस्ट थे। हु, गांधी।
Gandhi was against the mass production and wanted to replace it with the production by the masses. Production by the masses. Mass production के against थे and that production must be by masses. ओके ये नहीं पेट भरने पर, है ना. गांधी जी ये कहते थे पेट भरो पेटी नहीं, पेट भरो पेटी नहीं. ओके उनका मकसद यही था. इंटरनेशनल इनिशिएटिव्स फॉर कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेस. अब हम ये देखेंगे कि ये कंजर्वेशन के लिए इंटरनेशनल कौन कौन से इनिशिएटिव्स हुए. For the first time in April 1968, Club of Rome, a group of academicians, civil society, industrialists advocated for resource conservation in a more systematic way. First time, ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे how to conserve and why conserve resources that is needed. For that, the first meet that was held in 1968 in क्लब ऑफ रोम में हुआ. उसके बाद दो गांधीयन फिलोसफी एडवोकेटेड फॉर सस्टेनेबल यूज ऑफ रिसोर्सेज. इट वाज एक्सप्रेसिवली प्रेजेंटेड बाय सुषमाचार्य इन हिज बुक स्मॉल इन ब्यूटीफुल. स्मॉल इज ब्यूटीफुल इन 1974. उसके बाद 1974 में स्मॉल इज ब्यूटीफुल एक बुक पब्लिश होती है. किसके द्वारा? सुमेचार, है ना, सुमेचार द्वारा, जिसमें गांधी फिलॉसफी की झलक मिलती है. गांधी जी का जो दर्शन था, गांधी जी का जो सोच था, जैसे हमने कहा कि क्या प्रोडक्शन क्या होना चाहिए? मासेस के द्वारा होना चाहिए और प्रोडक्शन कतई मास स्केल पे नहीं होना चाहिए. गांधी जी मास स्केल प्रोडक्शन के अगेंस्ट थे एंड दैट प्रोडक्शन मस्ट बाय मासेस. ओके वे कहते थे पेट भरो पेटी नहीं, पेट भरो पेटी नहीं ना. उस ग्रीडी पर्सन का कोई अंत नहीं है, इसलिए लालच त्यागो ना. उसी से क्या होता है? प्रॉब्लम क्रिएट होता है हमारे समाज में, इन्वायरमेंट में. द नेक्स्ट इन 1987 द ब्रंटलैंड कमीशन रिपोर्ट ओके extensively mentioned the necessity of resources conservation and advocated the concept sustainable development. तो ये ब्रंटलैंड कमीशन द्वारा जो 1987 में रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया, उसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात की गई. एंड द लास्टली हम इंटरनेशनल इनिशिएटिव्स में देखेंगे इन 1992. No, that is given in your book. Okay, that is given in your book, the Rio de Janeiro. Then the conceptual progress in sustainable development was begun at the Earth Summit at Rio de Janeiro, Brazil in 1992. जो डिटेल्स में आपको पढ़ना है कि 1992 में रियो de जनेरो में एक इंटरनेशनल समिट होती है. वहाँ सारे राष्ट्राध्यक्षों की एक बैठक हुई, है ना. हाउ टू सेव द इन्वायरमेंट, हाउ टू सेव द अर्थ. ओके दैट इज द पूरा ये एक वैश्विक प्रॉब्लम है ना. ये इंडियन प्रॉब्लम नहीं है, इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम ना, ये हर जगह है. The first United Nations Conference on Environment and Development was held in Rio de Janeiro. और ये रियो de Janeiro कहाँ है? ब्राजील में है. ब्राजील is a country. In June 1992, more than 100 heads of state participated in it. उस मीट में जो रियो de Janeiro में हुआ, उसमें hundreds राष्ट्राध्यक्ष थे. Declaration on global climatic change and biological diversity were signed during the summit. इन पे वो साइन करते हैं. This summit supported the global forest principles and adopted Agenda 21. Agenda 21 को वे ऑप्ट करते हैं for achieving sustainable development in the 21st century. कि 21वीं सदी जो ये चल रहा है, इसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव किया जाए. हाउ टू अचीव ओके सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन
the 21st century. For that, the 100 nations signed. Okay, 100 nations, the head of the 100 nations signed on that in that summit. Okay, तो ये नेक्स्ट है क्या, लैंड रिसोर्सेस. रिसोर्स, लैंड, भूमि. ओके, लैंड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स, सो इट नीड्स टू बी यूज विथ केयर एंड कंसर्न. इसलिए बहुत महत्वपूर्ण रिसोर्स है ये हमारी धरती, हमारी भूमि, इसलिए इसको बहुत केयर करने की जरूरत है ना. इंडिया जोग्राफिकल एरिया कंप्राइजेज. ओके, क्या क्या हमारे भारत का जो भौगोलिक एरिया है, 43% प्लेन लैंड एरिया फॉर एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री. 43. तो वट एवर द लैंड ऑफ आवर कंट्री इज in which the 43% plain land are for agriculture and industry. Okay, plain land कितना है, 43%. उसी तरह प्लेटू कितना है, 27%. एंड माउंटेनियस कितना है, 30%. ना, the 27% plateaus which is source of minerals, fossil fuels and forests. No, and the 30% mountains which ensures perennial flow of some rivers and provides sites for tourism and ecological aspects. तो इस लैंड जो एक बेशकीमती संसाधन है, मानव के लिए बहुत आवश्यक है, इसको लॉजिकली हम यूज करें, बेतहासा इसको यूज न करें, बर्बाद न करें, है ना, केयरफुली इसका यूज हो. और टोटल ये एरिया कितना है हमारे भारत का, अब हम ये देखेंगे. द टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया इज 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर. कितना है, 3.28 million square kilometer. This is the total land of our country, India. In India, land use data is available for only 93%. Okay, जो टोटल जो एरिया है उसमें 93% ही डेटा हमको उपलब्ध है. कितना 7% नहीं हो पाया, इसलिए कि वहां सर्वे नहीं हो पाया था. कहाँ पे, स्पेशली द नदर्न ईस्टर्न जो स्टेट्स है एक्सेप्ट असम, है ना, वहां सर्वे नहीं हुआ, तो दैट इज नॉट इंक्लूडेड इन दिस 93% of total area, because land use reporting of the northeastern states except Assam and some part of Jammu and Kashmir has not been surveyed. तो ये क्या कहता है जो सर्वे हुआ, देखो कि इसमें दो स्टडी है, एक 60-61 का है और 2008 एंड 9 का है, 60-61 और 8-9. ठीक है, तो वहां 60 में देखेंगे इंडिया और फिर इधर 8-9 में देखेंगे, है ना. एरिया अंडर फॉरेस्ट इज फार लेस देन 33%, विच इज नेसेसरी फॉर मेंटेनेंस ऑफ द इकोलॉजिकल बैलेंस. हम सबको पता है कि फॉरेस्ट होना जरूरी है फॉर बैलेंस इन इन्वायरमेंट. अगर फॉरेस्ट की कमी होगी, जंगल नहीं होंगे, तो क्या होगा, इम्बैलेंस इन नेचर. तो 33% होना चाहिए. ठीक है, इकोलॉजिकल बैलेंस एज पर द नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी ऑफ 1952. तो जो हमारे देश जब आजाद होता है तो 1952 में एक नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी अपनाई जाती है और उसके अनुसार टारगेट कितना रहता है फॉरेस्ट का, 33%. ओके, द लैंड अंडर परमानेंट पास्चर्स इज वेरी लो एंड स्टिल डिक्रीजिंग. क्या होता है कि 60 और ये 8-9 में देखेंगे कि पास्चर इज वेरी लो एंड स्टिल डिक्रीजिंग. पास्चर क्या हुआ, जो जहां चरागाह, जहां पशुधन, हम लोग पशु पालते हैं, वो चरने जाता है, दैट इज द ग्रेजिंग लैंड. पास्चर दैट इज द ग्रेजिंग लैंड. तो दैट इज लेस एंड दैट इज वट एवर दैट इज डिक्रीजिंग इन द प्रोसेस डे बाई डे. तो दैट इज द प्रॉब्लम. And the most of NSA will become 54%.
द NSA नेट सोन एरिया, नेट सोन एरिया कितना है 54%. That is given in your book in details. You can watch both of the survey, the 60, 61 and 8 and 9. The net zone area in different states. तो हमने देखा कि जो नेट जोन एरिया है ना, जहाँ बोया जाता है ना, उस एरिया को जहाँ हम बीज डालते हैं, खेती करते हैं, वो कितना है 54%. द नेट जोन एरिया इन डिफरेंट स्टेट्स, वो वैरी करता है. द पैटर्न ऑफ नेट जोन एरिया वैरीज वाइडली बिटवीन डिफरेंट स्टेट. इट इज ओवर 80% इन पंजाब एंड हरियाणा. वहां कितना है नेट जोन एरिया, कहाँ पे, पंजाब एंड हरियाणा में, दैट इज 80%. ड्यू टू द इंटेंसिव एग्रीकल्चरल फैसिलिटीज, वहां एग्रीकल्चरल फैसिलिटीज है. इट इज लेस देन 10% इन अरुणाचल प्रदेश, जबकि अरुणाचल में कितना है नेट जोन एरिया, मात्र 10%. ओके. अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड. ऐसा क्यों है, वहां का ज्योग्राफिकल फैक्टर है. Continuous use of land without appropriate conservation measures had created the problem of land degradation. Okay? और वहाँ जो बेतहासा खेती हो रही है पंजाब हरियाणा में, जो वाटर लेवल नीचे, दैट इज डिक्रीजिंग डे बाई डे, है ना. ओवर इरिगेशन कर रहे हैं गेहूं को उपजाने के लिए, चावल को उपजाने के लिए, वट एवर द क्रॉप्स. तो क्या हो रहा है, द लैंड डिग्रेडेशन, लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन मेजर्स. लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन मेजर्स. तो लैंड डिग्रेड नहीं करें और उसको हम कंजर्व करें. जो लैंड डिग्रेड कर रहा है उसको हाउ टू कंजर्व दैट. फॉर दैट सम ऑफ द मेजर्स शुड बी, ना. क्या है, 95% ऑफ आवर बेसिक नीड्स फॉर फूड, शेल्टर एंड क्लोथिंग आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम लैंड. ओके. तो हमारा जो बेसिक नीड्स है, भोजन, वस्त्र, आवास, लाइक दैट, तो ये 95% का फुलफिलमेंट कहां से होता है, थ्रू लैंड. ओके. दैट्स वाई दैट इज मच एंड मच इम्पॉर्टेंट. ओके. तो लैंड इज अ वेरी मच इम्पॉर्टेंट रिसोर्स. तो देयर इज अ नीड टू कंजर्व दैट. तो उसको बचाना होगा. ह्यूमन एक्टिविटीज हैव डिग्रेडेड लैंड्स एंड आल्सो इंक्रीज्ड the pace of damage to lands caused by the natural forces. Currently, India has about 130 million hectares of wasteland. और हमारे यहाँ कितना 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है टोटल एरिया, ज्योग्राफिकल एरिया इंडिया का. उसमें 130 मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ वेस्टलैंड, है ना. तो 130 मिलियन जो है वो क्या है, वेस्टलैंड है. In compromise 28% forest degraded area. No. 56% is water eroded. 10% is wind eroded. And the rest 6% is affected by saline and alkaline deposits. इस तरह से होता है. Deforestation, overgrazing and expansion of mining. क्यों हमारा लैंड क्यों डिग्रेड कर रहा है? तो फॉर दैट सम आर द फैक्टर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट. क्या क्या, डिफॉरेस्टेशन. रोज बेतहासा जंगल की कटाई हो रही है. क्यों, आखिर पेड़ पात क्यों काटे जा रहे हैं, जंगल क्यों हो रहा है? इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन, कल्टिवेशन. द पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग डे बाई डे, फॉर बिल्ड अप द हाउसेस, रोड्स, लाइक दैट. तो डिफॉरेस्टेशन, ओवरग्रेजिंग भी हो रहा है, एंड एक्सपेंशन ऑफ माइनिंग भी बढ़ रहा है, एंड क्वायरिंग ऑपरेशंस हैव कंट्रीब्यूटेड टू लैंड डिग्रेडेशन. बिसाइड दिस नेचुरल फैक्टर्स लाइक, ये जो ह्यूमन है ये तो हम कर रहे हैं, और नेचुरल फैक्टर्स भी इसके लिए उत्तरदायी है, जैसे विंड एंड वाटर हैव कॉज्ड इरोजन ऑफ टॉप सॉइल, ना. और टॉप सॉइल जो है वो भी इरोडेड हो रहा है ड्यू टू द विंड एंड वाटर. तो ये जरूरी होता है इसको कंजर्व करना, इसलिए
कि अगर धरती नहीं रहेगी सुरक्षित तो हम मानव फिर कहाँ रहेंगे? हाँ, तो देयर इज अ प्रॉब्लम, दैट्स ऑल। थैंक यू।